Hi there, welcome to our channel. I am Siddhi and I am here to talk to you about the perfect fuel for all your grilling and cooking needs, and that is wood charcoal. Today, we will be discussing everything you need to know about wood charcoal, a natural and traditional fuel that has been used for thousands of years. हेलो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धि हूँ और मैं यहाँ आपसे आपकी सभी ग्रिलिंग और खाना पकाने की ज़रूरतों के लिए सही ईंधन के बारे में बात करूँगी और वह है लकड़ी का कोयला। आज हम लकड़ी के कोयले के बारे में जानने के लिए हर चीज़ पर चर्चा करेंगे जो कि एक प्राकृतिक और पारंपरिक ईंधन है जिसका उपयोग हज़ारों वर्षों से किया जा रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। Wood charcoal is a lightweight black carbon residue produced by strongly heating wood or other animal and plant materials in minimal oxygen to remove all water and volatile constituents. In the traditional version of this pyrolysis process called charcoal burning, often by forming a charcoal kiln, the heat is supplied by burning part of the starting material itself with a limited supply of oxygen. The material can also be heated in a closed retort. लकड़ी का कोयला यह एक हल्का काला कार्बन अवशेष है जो सभी पानी और वाष्पशील घटकों को हटाने के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन में लकड़ी या अन्य पशु और पौधों की सामग्री को जोरदार गर्म करके उत्पादित किया जाता है। इस पायरोलिसिस प्रक्रिया के पारंपरिक संस्करण में, जिसे चारकोल बर्निंग कहा जाता है, अक्सर चारकोल भट्टा बनाकर ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के साथ शुरुआती सामग्री के हिस्से को जलाकर ही गर्मी की आपूर्ति की जाती है। सामग्री को बंद रिटॉर्ट में भी गर्म कर सकते हैं। Have you heard about the modern charcoal briquettes? They are an updated version of the traditional charcoal that we use for grilling. Let me tell you about modern charcoal. Modern charcoal briquettes used for outdoor cooking may contain many other additives, for example, coal. This process happens naturally when combustion is incomplete and is sometimes used in radiocarbon dating. It also happens inadvertently while burning wood, as in a fireplace or wood stove. The visible flame in these is due to combustion of the volatile gases exuded as the wood turns into चारकोल। क्या आपने आधुनिक चारकोल ब्रिकेट के बारे में सुना है? वे पारंपरिक चारकोल का एक उन्नत रूप है जिसका उपयोग हम ग्रिलिंग के लिए करते हैं। अब मैं आपको आधुनिक चारकोल के बारे में बताती हूँ। बाहरी खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधुनिक चारकोल ब्रिकेट में कई अन्य योजक शामिल हो सकते हैं, जैसे कोयला। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से तब होती है जब दहन अधूरा होता है और कभी-कभी रेडियो कार्बन डेटिंग में भी प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी जलाते समय अनजाने में भी होता है, जैसे कि चिमनी या लकड़ी के चूल्हे में। इनमें दिखाई देने वाली लौ वाष्पशील गैसों के दहन के कारण होती है, जो लकड़ी के कोयले में बदलने के कारण निकलती है। Did you know that when we burn modern charcoal briquettes, they produce carbon dioxide? Well, let me explain. The soot and smoke commonly given off by wood fires result from incomplete combustion of those volatiles. Charcoal burns at a higher temperature than wood with hardly a visible flame and releases almost nothing except heat and carbon dioxide. 1 kilogram of charcoal contains 680 to 820 grams of carbon, which, when combined with oxygen from the atmosphere, form 2.5 to 3 kilogram of carbon dioxide. क्या आप जानते हैं कि जब हम आधुनिक चारकोल ब्रिकेट जलाते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं? तो चलिए मैं इसे समझाती हूँ। आमतौर पर लकड़ी की आग से निकलने वाली कालिख और धुआं उन वाष्पशील पदार्थों के अधूरे दहन का परिणाम होता है। चारकोल लकड़ी की तुलना में अधिक तापमान पर जलता है, शायद ही कोई लौ दिखाई देती है और गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा लगभग कुछ भी नहीं छोड़ता है। 1 किलोग्राम चारकोल में 680 से 820 ग्राम कार्बन होता है, जो वातावरण से ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2.5 से 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
So, when we use a grill or a barbecue to cook food using these briquettes, we are also releasing carbon dioxide into the atmosphere. In fact, burning charcoal is one of the major sources of carbon dioxide emissions, which is a greenhouse gas that contributes to climate change. इसलिए जब हम इन ब्रिकेट का उपयोग करके खाना पकाने के लिए ग्रिल या बारबेक्यू का उपयोग करते हैं तो हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे होते हैं। वास्तव में लकड़ी का कोयला जलाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। हैव यू हर्ड अबाउट एक्टिवेटेड चारकोल? So let's know about this. Activated charcoal is also known as modern charcoal. It is a type of charcoal that has been treated with oxygen to open up millions of tiny pores between the carbon atoms. This process increases the charcoal's surface area, making it highly absorbent and effective at trapping toxins and impurities. Now, the question arises that is activated charcoal safe to us? Yes, as long as it's used properly, modern charcoal or activated charcoal is generally considered safe. However, it can interfere with the absorption of certain medications. So, it's important to speak with your doctor before using it if you are taking prescription drugs. क्या आपने सक्रिय चारकोल के बारे में सुना है? सक्रिय चारकोल को आधुनिक चारकोल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का लकड़ी का कोयला है जिसे कार्बन परमाणुओं के बीच लाखों छोटे छिद्रों को खोलने के लिए ऑक्सीजन के साथ इलाज किया गया है। यह प्रक्रिया चारकोल के सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जिससे यह अत्यधिक शोषक और विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को फंसाने में प्रभावी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सक्रिय चारकोल हमारे लिए सुरक्षित है? हाँ, जब तक इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है। आधुनिक चारकोल या सक्रिय चारकोल को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सक्रिय चारकोल कुछ दवाओं के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए यदि आप प्रिस्क्राइब दवाएं ले रहे हैं तो इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। Now, here are some common uses for wood charcoal. The first is cooking and grilling. Wood charcoal is often used as a fuel for outdoor cooking and grilling. It provides a high heat output and imparts a smoky flavor to the food. अब मैं यहाँ लकड़ी के कोयले के कुछ सामान्य उपयोगों को बताती हूँ। इनमें पहला है खाना पकाना और ग्रिलिंग। लकड़ी के चारकोल का उपयोग अक्सर बाहरी खाना पकाने और ग्रिलिंग के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यह एक उच्च ताप उत्पादन प्रदान करता है और भोजन को एक धुएं के रंग का स्वाद प्रदान करता है। Second is water filtration. Activated charcoal made from wood is used as a water filtration agent. It can remove impurities and improve the taste of the water. जल का शोधन। लकड़ी से बने सक्रिय चारकोल का उपयोग जल के शोधन में एजेंट के रूप में किया जाता है। यह अशुद्धियों को दूर कर सकता है और पानी के स्वाद में सुधार कर सकता है। Third use is soil amendment. Wood charcoal can be added to soil as a natural soil amendment. It can help to retain moisture and nutrients, improve structure, and promote healthy plant growth. मृदा संशोधन। प्राकृतिक मृदा संशोधन के रूप में लकड़ी के चारकोल को मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। यह नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने, मिट्टी की संरचना में सुधार करने और स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। Fourth is artistic uses. Wood charcoal can be used as a drawing medium for artists. It is often used for creating dramatic black and white drawings or sketches. कलात्मक उपयोग। कलाकारों के लिए लकड़ी के चारकोल का उपयोग ड्राइंग माध्यम के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर नाटकीय काले और सफ़ेद चित्र या रेखा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। Fifth is medicinal uses. Activated charcoal made from wood can be used for various medicinal purposes, such as treating poisonings or overdoses. It works by absorbing toxins and preventing them from being absorbed by the body. औषधीय उपयोग।
लकड़ी से बने सक्रिय चारकोल का उपयोग विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि जहर या अधिक मात्रा का इलाज करना। यह विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करके और उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित होने से रोक करके काम करता है। Overall, wood charcoal has a wide range of used and benefits, making it a valuable and versatile material. कुल मिलाकर लकड़ी की चारकोल के उपयोग और लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो इसे एक मूल्यवान और बहुमुखी सामग्री बनाती है। Thank you for watching this video on wood charcoal. Please subscribe my channel, like, comment and share. Hope you have learned something new about this amazing natural product and which is also an amorphous form of carbon. Please don't forget to press bell icon so as to get notifications of my videos. लकड़ी के कोयले पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ।